बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class in the name of Allah who is most beneficent and merciful. Today we are going to start the new chapter, that is the chapter number 6, discovering plant. Discovering plants, we see different plants around us. Some are big and some are small. So have you ever noticed that some are big, some are small, either flat and either thinner. So these are plants have shared the similar structures. सब प्लांट्स जो होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स लगते हैं. लाइक वी ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स हैव ओन फंक्शन लाइक दैट, लाइक एयर, आइज, ह्यूमन एक्सेट्रा. So in the similar way, plants have the different parts, and these different parts of the plants are first part is the root, stem, leaves, these parts of the plants are root, stem, leaves, flowers and fruits. These parts of the plants are help them grow and survive. ये parts ऐसे होते हैं plants के जो इनको grow करने में, survive करने में participate करते हैं. ठीक है, अच्छा जी. The roots, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पूरे प्लांट है, ठीक है. ये हमारे पास जो पार्ट ऑफ प्लांट है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये पार्ट्स हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. The parts of the plant below the soil is called the root. We cannot see this. And the other parts of the plant above the soil, we can see this, is called the shoot of the plant. These shoots connected to the branches. Flowers and fruits are connected to these branches. ठीक है, हमारे पास बिलो द सॉइल जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है एंड वी कैन नॉट सी दिस. ठीक है, और हमारे पास अबव द पार्ट जो सॉइल सिस्टम के होता है, अबव द पार्ट जो प्लांट होता है, एंड वी कैन सी दिस, दिस इज कॉल्ड द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. So you can see this. We have a topic of parts of plant. So observe a part of plant that grow on a land. So identify the different parts of the plant. Which plant are usually above a ground and which parts are usually under a ground. So plant usually below the ground is called the roots of the plant, and plant above the ground is called the shoots of the plant. This shoot of the plant include the stem. This is the stem, and this is the root of the plant, and this is the fruit of the plant, and this is the flower or the plant, and this is the leaf of the plant. This is the 5 parts of the plant, and these 5 parts make a plant. First of all, we will discuss the first part of the plant. This is called the root. जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रूट. तो सबसे पहले रूट को डिस्कस कर लेते हैं. रूट बिलो द सॉइल में बिलो होती है एंड वी कैन नॉट सी दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. एंड रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. And it carry nutrient and water from the soil. It carry nutrient and water from the soil.
This is the main part of the plant. It is very important part of the plant. This part carry root and nutrient from the soil and transport to the all part of the plant. So root hold the plant firmly in the ground. Root plant को क्या करती है, hold, ये roots जो होती हैं पूरे plant को hold करके रखती हैं ground में. अच्छा जी. It carry nutrients and water from the soil. This is the very important part of the plant. From this sides, water and nutrient transport from this all parts of the plant. So root have two types. Root have two types. First type is the tap root. Second type is the fibrous root. First type is the tap root, second root is the fibrous root. Some plants like carrot, turnip, beetroot have the tap root. For example, carrot, beetroot and turnip have the main roots and the thinner roots are growing from it. Some plants like carrot, this is the carrot, this is the main root and the thinner roots are growing from it. This is called the tap root. On the other hand, the fibrous root, fibrous roots, these roots are grow from the end of the stems and these are tiny and bushes like roots and these roots are growing from the end of the stem. These roots are tiny and bushes like roots. And these roots are about the same size. These roots are growing from the end of the stem. So we have two types of root, tap root and fibrous root. Tap roots are like that carrot, beetroot, turnip have the main root and thinner roots are growing from it. On the other hand, fibrous roots, they have a tiny and bushes like root and these roots are growing from the end of the stem. So you can see this. Roots of some plants like carrot consist of a long main root called taproot with smaller, thinner like structure. Smaller, thinner like thread like structure is called the taproot. आपके पास क्या है, ये हमारे पास कैरोट है. कैरोट एक मेन रूट होती है. इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थिनर रूट्स निकल रही हैं, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, टैप रूट कह रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर है फाइब्रस रूट का है. फाइब्रस रूट्स हमारे पास वो रूट्स होती हैं जो हमारे पास सेम साइज की होती हैं, बुशेस लाइक होती हैं. लाइक दैट कोकोनट है, कोकोनट प्लांट होता है, ग्रासेस प्लांट होता है, वीट प्लांट होता है. उसकी जो रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट्स होती हैं. फाइब्रस रूट सेम साइज होता है और हमारे पास एंड ऑफ द स्टेम, लाइक दैट आपके पास ये स्टेम है तो एंड ऑफ द स्टेम जो होती हैं ग्रो हो रही होती हैं, बुशेस लाइक होती हैं, झाड़ियों की तरह होती हैं और एक ही तरह सेम साइज की होती हैं. ये रूट्स जो होती हैं हमारे पास फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं और ये पूरा सिस्टम जो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. ये रूट्स हमारे पास फाइब्रस रूट कहलाती हैं और सेकंड रूट जो हमारे पास मेन रूट से ग्रो हो रही होती हैं तो ये रूट हमारे पास कहलाती है टैप रूट. बिल्कुल थिनर स्ट्रक्चर, थिनर थ्रेड्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस वजह से हमारे पास कैरोट जो होती है वो कहलाती है टैप रूट. इसमें से छोटी छोटी रूट्स ग्रो हो रही होती हैं और ये हमारे पास कैरोट, बीट रूट, टर्निप जो होता है ये हमारे पास कहलाती है टैप रूट सिस्टम. अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर है. ठीक है. रूट्स जो होते हैं अपने रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं. ये रूट्स हेयर होते हैं, ये रूट हेयर कैरी करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से. इफ़ यू ऑब्जर्व रूट क्लियरली क्लोज अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप सो यू मे बी एबल टू सी मैनी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर. These thin hair-like structure is called the root hairs.
These thin hair-like structure is called the root hairs. The root covers and protect the tip of a root. Root को जो cover and protect करके रखता है वो हमारे पास कहलाता है root cap. अच्छा जी, अब रूट का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय द रूट. रूट्स के किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, रूट में कुछ वाटर कैरिंग ट्यूब्स होती हैं. ये वाटर कैरिंग ट्यूब्स जो होती हैं, ये वाटर कैरिंग ट्यूब्स जो हमारे पास मिनरल और सॉल्ट सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. इस तरह से एब्जॉर्ब करती हैं. यहाँ से एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है रूट का. इस रूट के क्रॉस सेक्शन को इस तरह से कट करके ऑब्जर्व किया गया अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वाटर कैरिंग ट्यूब्स होती हैं रूट के अंदर, और ये वाटर कैरिंग ट्यूब्स यहाँ से वाटर लेती हैं और मिनरल्स लेती हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती हैं. अब हमारे पास बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. तो हमने देखा था यहाँ पे कैरोट रूट है. कैरोट दैट वी ईट, यूजुअली द रूट ऑफ अ कैरोट प्लांट. ऑब्जर्व अ कैरोट रूट. अगर आप कैरोट रूट को ऑब्जर्व करें, कैरोट ग्रास प्लांट को ऑब्जर्व करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरोट रूट की थिनर रूट्स जो निकली हुई है इसके ऊपर. ठीक है, ये हमारे पास टैप रूट है. दिस इज द मेन रूट एंड थिनर रूट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम इट. दिस इज कॉल्ड द टैप रूट. एंड द ग्रास रूट टाइनी एंड bushes likes are root and it is growing from the end of the stem. This is called the fibrous root. Observe the root of the different plants to see whether they have a taproot system or fibrous root system. So beetroot have a thinner roots are growing from it. This is called the taproot system. Leek plant has a fibrous system. You can see here leek has the same size of the bushes like root and it is growing from the end of the stem. Another example we have spring onion. Onion has a fibrous root because these roots are growing from end of the stem and these roots are about the same size. Spinach has the tap roots because it has a thinner roots. Turnip is a tap root because thin roots are growing from it. Another is springcress, another plant, these have a tap root system. So I have shown here the roots. Let's look at the part below the ground is called the root. Root has the two parts. Root is the main part. Roots hold the plant firmly in the ground and it carry water and nutrient from the soil. And root has the two types, tap root and fibrous root. Tap root, like that some plants like carrot, beetroot, turnip have a main root and thinner roots are growing from it. Fibrous root, these fibrous roots like some plants like coconut trees, grass trees, grasses. These plants have fibrous root. These fibrous roots are like tiny and bushes root and these roots are growing from end of the stem. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था स्टेम के एंड से होती हैं और सेम साइज होता है. ये रूट्स हमारे पास कहलाती है फाइब्रस रूट कहलाती हैं. और अगर हमारे पास मेन रूट्स पे से थिनर रूट्स ग्रोइंग हो रही होती है तो ये हमारे पास कहलाती हैं टैप रूट कहलाती है. Now we will discuss the another second part of the plant is stem. Second part of the plant is the stem. Look at the part above the soil. Look at the part above the soil is called the shoot system. Shoot system include the stem and stem connected to the branches. Flowers and fruits and leaves are attached to these branches. अच्छा जी. Second part is stem. How the nutrient and water transport to the plant, how it is transport through the stem. कैसे न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्लांट को ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द रूट. ठीक है, रूट के थ्रू ही स्टेम को ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सो it is transport through the stem. Some stems like
stem, it carry nutrient and water from the roots. It carry nutrient and water from the roots. Roots के through nutrient water transport होता है, and that for example we eat the sugar cane. Sugar cane is actually a stem of the root, and this is the edible stem of the root, because some plant store food in the stem, some plants store food in the form of leaf, some plants store food in the form of leaves, some plants store food in the form of fruit. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्टोर करके रखते हैं फूड्स को फ्रूट की फॉर्म में, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो होता है वो लीफ की फॉर्म में. जिस तरह से हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर करके रखते हैं, वी स्टोर फूड इन द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में करके रखते हैं, इस तरह से प्लांट्स के पास भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा फूड जो होते हैं उसके अंदर सेव करके रखते हैं. इस स्टेम प्लांट को जो हमारे पास है, शुगर केन प्लांट को एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं, एडिबल स्टेम भी कह सकते हैं, क्योंकि अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अपना फूड होता है वो स्टेम में स्टोर करके रखते हैं. स्टेम it carry nutrient and water from the roots. It carry nutrient and water from the roots and prepared by the leaves. It carry nutrient and water from the roots. ये nutrient और water जितना भी roots से होगा ये transport हो जाएगा. So it act as a transport system. ये हमारे पास क्या act करता है? It act as a transport system. From this stem, the food and nutrients are transported to the all parts of the plant. So stem is also important part of the plant because it act as a transport system. stem के ही through जो food और water root से लिया गया है ये leaves में भी जाएगा, fruit में भी जाएगा और हमारे पास flowers में भी जाएगा. तो हमारे पास stem के यहाँ पे function होते हैं. It carry nutrient and water from the roots. It act as a transport system. Like that sugar cane that we eat, actually a sugar cane is basically a stem, and this sugar cane stem is an edible stem because sugar cane store extra food in this stem. So we will discuss the another part of the plant that is called the leaf. But before this, I will show you some diagrams in the book. This is the stem of a plant, the roots of plant take in water. This is the stalk of white gladius flower. This is the white gladius flower. The roots of a plant take in water and mineral salt from the surrounding. क्या किया गया है यहाँ पर? स्टॉक ऑफ वाइट ग्लैडियस फ्लावर लिया गया है और इसको एक ग्लास में डिप कर दिया गया है. ठीक है, इस ग्लास में जो है आपके पास रेड इंक ली गई है, उसको प्लेस कर दिया गया है. ठीक है, रेड इंक प्लेस्ड कर दी गई है. अब यहाँ पे जितना भी स्टेम होगा ये यहाँ से वाटर एब्सॉर्ब करेगा. ये वाइट ग्लैडियस फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लीव्स में. ठीक है, इसके जितने भी फ्लावर्स और लीव्स जो होंगे कलर चेंज हो जाएगा. टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ स्टॉक ऑफ वाइट ग्लैडियस इन अ ग्लास ऑफ क्लर्ड वाटर, आफ्टर वन डे यू ऑब्जर्व द प्लांट ऑफ वाइट ग्लैडियस. द कलर ऑफ द वाइट ग्लैडियस हैव बीन चेंज्ड. कलर जो होगा इस वाइट ग्लैडियस फ्लावर का चेंज हो जाएगा क्योंकि स्टेम का ये वर्क होता है, फिनोमिना होता है कि वाटर को एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, वाटर को लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नाउ कट अक्रॉस द स्टॉक ऑफ ग्लैडियस एंड ऑब्जर्व द कट सरफेस. व्हाट डू यू सी? हम क्या देखते हैं? अगर यहाँ पे स्टेम का छोटा सा पोर्शन लेते हैं, कट करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में. द कलर्ड पार्ट ऑफ द ग्लैडियस स्टॉक आर द ट्यूब्स. ये ट्यूब्स हैं हमारे पास. ठीक है, ये स्टेम का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है. द कलर्ड पार्ट ऑफ द स्टेम आर ग्लैडियस स्टैक आर द ट्यूब्स हैं. ये यहाँ पे ट्यूब्स हैं दैट कैरी वाटर. ये ट्यूब्स जो होती हैं वाटर लेती हैं रूट से.
इनसाइड अ स्टेम, स्टेम का आपके पास ये है, स्टेम का एक छोटा सा पीस क्रॉस सेक्शन डिस्कस किया जा रहा है अंडर अ माइक्रोस्कोप। देयर आर मैनी ट्यूब्स, यहाँ पे कई ट्यूब्स हैं दैट कैरी वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, यहाँ से रूट से वाटर एंड मिनरल्स लेता है और तमाम प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। The stem and join the root of other plant. It hold the leaf and enable them to reach for sunlight that is necessary for making the food. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन है। स्टेम के क्रॉस सेक्शन में बताया गया है कि किस तरह से वाटर कैरिंग ट्यूब्स होती हैं। इन वाटर कैरिंग ट्यूब्स के थ्रू प्लांट जो होता है, वाटर कैरिंग ट्यूब्स के थ्रू स्टेम जो होता है वो रूट से वाटर लेता है और आगे ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्टेम्स। सम प्लांट हैव अ वुडी स्टेम, ठीक है, सम प्लांट्स हैव अ वुडी स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वुडी होता है, ठीक है, एंड द स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड द स्मॉलर प्लांट्स विद वुडी स्टेम। वुडी स्टेम्स हैं लेकिन प्लांट्स थोड़े स्मॉलर हैं तो ये कहलाएंगे shrubs. Like that, rose plants are called rose shrubs. Smaller plants with woody stems are called shrubs. ये smaller plants हैं but इनका भी woody stem है तो ये हमारे पास shrubs कहलाएंगे। But the longer plant, the trunk of tree is called a woody stem. ये हमारे पास trunk है। The thick some plants are woody stem. These woody stems are called the trunk. ये woody stems जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, trunk कहलाता है। But some plant have non-woody stem like that. I have this plant but non-woody stem. This is called the herbs. Herbs are plant that have the non-woody stem, and some plant have non-woody stem. The thick non-woody stem part of the plant, thick non-woody stem part of the plant is called the trunk. ये जो थिक वुडी स्टेम पार्ट होता है प्लांट का ये हमारे पास ट्रंक कहलाता है। एंड दिस ट्रंक इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड द बार्क। ये ट्रंक जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर जो प्रोटेक्ट करके रखती है प्लांट को इनसाइड, अंदर से प्लांट को सेव करके रखती है फ्रॉम द वेदर। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द वेदर एंड एनिमल्स टेक लाइट टू लिटिल बाइट फ्रॉम दैम। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड द बार्क। ये प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास कहलाती है बार्क। जिस तरह से आपने गार्डन में देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत थिक स्टेम होता है उनका, ठीक है, वो वुडी स्टेम होता है। वुडी स्टेम हमारे पास ट्रंक कहलाता है। अगर उसके ऊपर आप बिल्कुल देखते हैं ट्रंक होता है और यहाँ पे ये ट्रंक जो होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर इस स्टेम को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाती है, यहाँ पर बार्क कहलाती है। बट वी हैव डिफरेंट प्लांट्स। सम प्लांट हैव अ नॉन वुडी स्टेम्स लाइक दैट सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जिसका नॉन वुडी स्टेम होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका वुडी स्टेम नहीं होता, स्टेम होता है लेकिन वुड लाइक नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन वुडी स्टेम कहलाएंगे, ठीक है। Now another part we discuss here, the leaves. The flat green parts of the plants are called the leaves. Leaves prepare food in the presence of the flat green parts of the plant. You can see here these flat green parts of the plants are called the leaves. Leaves prepare food in the presence of sunlight, air and water. Basically leaf prepare food. So leaf, we can say this, leaf is the kitchen of the plant. We prepare everything in the kitchen. So
हम यहाँ पे क्या करते हैं, किचन में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसी तरीके से लीव्स जो होते हैं, लीफ भी क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. लीफ प्रिपेयर फूड फ्रॉम द प्लांट. सो बेसिकली वी कैन से दिस, leaf is the kitchen of the plant. Leaf prepare food in the presence of sunlight, air, water. leaf अपना food prepare कर रहा होता है sunlight की presence में, air की presence में और water की presence में. यहाँ पे हमारे पास different leaf है, but different plants have different leaves, and different leaves has a different structure, shape, texture, size. So we will discuss here. Flowers. Let's look at the attractive part of the plant. Another attractive part of the plant, this is the flower. Yes, you can see here, this is the attractive part of the plant. Each plant has the different colors of the plant, and these attractive part of the plants are called the flowers. These flowers turn into food, and food have seed in it. अच्छा जी. Now flowers turn into food and food have seed in it. So we have discussed the 5 parts of the plant: root, stem, leaf, flowers and fruits. This is the root system. Plants grow below the soil, that we can see this. So plant has the 2 parts. The first part is the root system, another part is the shoot system. The plants below the soil, this plant has the part below the soil and we cannot see this is called the root system. वो part जो हम देख नहीं सकते plant का, वो root system कहलाता है. And the plant, we can see this, the upper part above the soil, another part above the soil is called the shoot system. Shoot system include the stem, branches, these are branches, and flowers, leaves are attached to these branches. This is the flower, fruits, leaves. Flowers turn into fruit and fruit have seed in it. So this basically plant has the 2 part, root system and shoot system. So here is the root system. This is the roots. These roots, the fibrous root system, because it grows from the end of the stem. Another part is the leaf. This is the stem and leaves are connected to this. This is the stem, and the flowers, this is the flowers, and flowers turn into the seed, and flowers turn into fruit and fruit have seed in it. यहाँ पर आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं. पहले हमने प्लांट को डिस्कस किया कि प्लांट के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स में भी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ये पार्ट्स मिलके एक प्लांट बनाते हैं. फिर अब 1 बाय 1 हमने यहाँ पे तमाम प्लांट के पार्ट को डिस्कस किया है. रूट है, यहाँ पे स्टेम है, लीव्स है, सीड है एंड फ्लावर्स है. ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीव्स. बेसिकली third topic we have leaves. Leaves, the flat green part of the plants are called the leaves. Different plants have different leaves, as you can see here. Different parts of the plant have different leaves. हर plants के different leaves होते हैं. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर है first of all, we will discuss the parts of the plant. First of all, we will discuss the parts of plant. The parts of plant, this is the leaf stalk. This is the leaf blade. This is the main leaf vein. And this is the branch leaf vein.
Observe the parts of the plant. This is the leaf stalk, main leaf vein. This is the vein. And this is the leaf blade. And this is the branch leaf vein. Leaf veins has a tiny tubes from this stem transport to the water, and the leaf vein has a tiny tube from this side, the water came out. यहाँ पे क्या होता है, आपके पास लीव्स में जो टाइनी ट्यूब्स होती हैं इन वेन्स में, ठीक है, इन वेन्स के थ्रू वाटर आता है और यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है. सो लीव हैव अ टाइनी ट्यूब्स एंड प्रिपेयर द फूड्स फ्रॉम द प्लांट. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. Now we will discuss the different types of leaves. अब यहाँ पर हम लीव्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हम लीव्स को डिस्कस कर रहे हैं कि लीव को कौन सी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है. वी डिफ्रेंशिएट लीव ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द लीव्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट. This is the veins of leaf. Okay, this is the hibiscus leaf. Hibiscus plant के leaves हैं. On the other hand, we have a leaves of orchid leaves. Orchid plant के leaves हैं. Okay, we differentiate the plants. We will differentiate the plant on the basis of color, on the basis of color, on the basis of edges, types of edges, and types of veins. So we will differentiate the leaves on the basis of colors, types of edges and types of veins. So we have a hibiscus leaf. This hibiscus leaf have a color of green. And the shape of leaf is shape of a leaf. First of all we will discuss the shape of leaf. Hibiscus leaf has a round shape. This hibiscus leaf has a round shape. This is the round shape. And this leaf, orchid leaf, has a long and narrow shape. I will write here the shape of the leaves. The hibiscus leaf, it has a round shape. Okay, you can see here this leaf has a round shape and it has a long and narrow shape. Long and narrow shape, जैसा आप देख रहे हैं कि इस लीव्स की शेप किस तरह से है, लॉन्ग है, और इस लीव की शेप क्या है, राउंड है. टाइप्स ऑफ एजेस. दिस लीव हैज अ टूथ एज. इस तरह से आपके पास टूथ एजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे कट कट करके एजेस है, तो दिस लीव हैज अ टूथ एज. This leaf has a running along each other. These veins are running along each other. This has a smooth edges. It has a smooth edge. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे leaves की जो edges है बिल्कुल smooth सी हैं. अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि veins है. यहाँ पर veins जो है आपके पास बिल्कुल clear veins हैं. These veins are divided into on the other hand the branches. यहाँ पे veins जो है और branches में divide हो रही हैं. These veins are called net like vein. एक पूरा chamber बन जाता है veins का, ये हमारे पास कहलाती हैं net like vein. यहाँ पर veins देख रहे हैं आपके एक के बाद parallel veins आ रही हैं, तो ये आपके पास कहलाएंगी parallel veins. अच्छा जी, इस तरह से देख सकते हैं. Just like a plant, a leaf is made up of different parts. Observe a leaf. What are the parts that make up of?
This is the leaf stalk, this is the branch leaf vein, this is the main leaf vein, and this part is the leaf blade. Leaf stalk, leaf blade, veins are some parts of the plant. Some leaf do not have leaf stalk. The veins of leaf are made of, जिस तरह से आपको ये veins दिख रही हैं. अच्छा जी, ये हमारे पास एक लीफ है मेरे पास, यहाँ पे लीफ स्टॉक है, इसका मेन लीफ वेन है, यहाँ पे लीफ ब्लेड है. These veins of leaf are made of tiny tubes. So some of these carry water from the stem to the leaves. Other tube carry food made by the leaves to the food carry to in the stem. आपके पास देखें किस तरह से ये लीफ हैं और ये लीफ में वेन्स भी दी गई हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ. यहाँ पे जिस तरह से बोर्ड पे भी शो किया था कि हमारे पास 2 प्लांट्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट लीव्स. सो कंपेयर द लीफ ऑफ द हिबिस्कस लीफ एंड ऑर्चिड लीफ. हिबिस्कस लीफ इज ओवल इन शेप and the orchid leaf is a long and narrow shape. If you look at the edges of this leaf, the edges of this leaf is the tooth-like edges. The edges of this leaf is the smooth edges. So hibiscus leaf has one vein in the middle that branches out into the smaller veins and it form a network channel is called a net-like veins. आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर लीफ में एक वेन्स बहुत सारी दिख रही हैं और ये वेन्स फर्दर वेन्स में डिवाइड हो रही हैं. तो ये हमारे पास ऐसा लीफ कहलाता है नेट लाइक वेन्स. और एक लीफ जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है, जिसमें वेन्स इतनी क्लियर नहीं दिख रही होती हैं. हमारे पास पैरेलल वेन्स होती हैं, एक के बाद एक वेन्स चल रही होती हैं, फर्दर डिवाइड नहीं होती. ये वेन्स हमारे पास कहलाती हैं पैरेलल वेन्स. So we have classified the leaves on the basis of the shapes, edge and the veins. Observe the leaf in the garden. Which leaf have a, आप कभी गार्डन में जाएं तो ऑब्जर्व करें कि which leaf कि आपके पास कौन से प्लांट के लीव्स जो है उनकी एजेस हैं, टूथ एजेस हैं, कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनकी आपके पास स्मूथ एजेस हैं, और कौन which plant has a parallel vein and which plant has a net like veins. अच्छा जी. So we have also classified the leaves on the basis of color, size and texture. So leaf have different colors. Leaf have different colors. Some leaves are the dark green color, some leaves are the light green color. जिस तरह से आप देखते हैं कि कुछ leaves के कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लीव्स का कलर बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसके कलर नॉन ग्रीन, उसमें बिल्कुल भी ग्रीन कलर नहीं होता है. सो मोस्टली लीव्स आर ग्रीन बट सम लीव्स हैव डिफरेंट कलर. ज़्यादातर हम जो लीव्स देखते हैं अपनी सराउंडिंग में प्लांट्स में वो हमारे पास डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं. तो लीव्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है कलर्स की बेसिस पे भी. लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स. अब आपके पास यहाँ पे देखें कि लीव्स के डिफरेंट शेप्स हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवल शेप भी है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर पॉइंटेड शेप भी है, यहाँ आपके पास देखें हार्ट शेप भी है, और यहाँ पर हमारे पास एक और शेप है शॉर्ट शेप है, ठीक है. यहाँ पर स्पेयर शेप भी है जिसके पॉइंटेड एंड्स होती हैं, वो हमारे पास स्पेयर शेप कहलाती है. एंड द लोब शेप लीफ होती है, स्मॉल राउंड लोब होती है. सो वी हैव अ डिफरेंट लीव्स एंड दिस इज द टूथ एज. ये हमारे पास टूथ एजेस कहलाते हैं. ये टूथ एजेस होते हैं और इस तरह के एजेस जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं. लीफ हैव डिफरेंट साइजेस. लीफ के जो है डिफरेंट साइज होते हैं. कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास लार्ज होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो बहुत मीडियम साइज के होते हैं. लाइक दैट आई हैव दिस लीफ. दिस इज द मीडियम साइज ऑफ लीफ. दिस इज द लार्ज लीफ एंड दिस इज द स्मॉल लीफ. तो लीव्स को आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लीव्स की बात की जाए, लीव्स है विद द इंटायर एजेस. एजेस पे डिपेंड, एजेस पे भी आप एजेस चेक कर सकते हैं, ठीक है. जैसे आपके पास यहाँ पर लीव विद इंटायर एज है, हमारे पास एक लीव ऐसा है जिसके एजेस भी निकले हुए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है टूथ एजेस है. लीव को हम एजेस की बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं. ये एजेस हैं आपके पास,
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से कट कट करके एजेस निकले हुए हैं। ये लीफ को हमने क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। अच्छा जी, लीफ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर किसे कहते हैं? जैसे कि आप देखें कि आप अपना हैंड पे टच करके देखते हैं, फील करके देखते हैं, तो आपको बहुत स्मूथ सी होती है। विंटर में हमारी स्किन कैसी होती है? बहुत ड्राई होती है, रफ होती है। तो बिल्कुल अगर जैसे हम कुछ अप्लाई करते हैं स्किन पे तो हमारी स्किन क्या होती है? स्मूथ होती है। जब आप लीफ को भी होल्ड करते हैं, ग्रिप करते हैं, तो लीफ की स्किन भी क्या होती है? स्मूथ होती है। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत स्मूथ सी होती है, कुछ लीफ ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत रिंकल्ड सरफेस होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्मूथ नहीं होते बल्कि उसमें रिंकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, रिंकल्ड सरफेस होती है। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो हेयरी होते हैं, पता चलेगा कि आपको, आप जब उसको टच करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा बाकायदा हेयर्स फील हो रहे हैं। और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो वैक्सी सरफेस होती है। सो कैन यू क्लासीफाई लीफ बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? आप क्या लीव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है लीव्स को क्लासीफाई किया है। अच्छा जी, लीव्स को हमने क्लासीफाई किया है सबसे पहले शेप की बेस पर, शेप, कलर, साइज, एजेस, टेक्सचर। So you will also classify the leaves on the basis of these character। आप भी क्लासीफाई कर सकते हैं लीव्स को, शेप की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि लीफ का शेप कैसा है, राउंड है, ओवल है। कलर की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग में ज़्यादातर देखते हैं कि लीव्स का कलर क्या होता है? डार्क ग्रीन होता है। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं लाइट ग्रीन कलर होता है। साइज़ की बेस पे देखते हैं कि कुछ लीव्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, कुछ लीव्स जो होते हैं मीडियम होते हैं, और कुछ लीव्स जो ऐसे होते हैं वो स्मॉल होते हैं। और एजेस भी देखते हैं कि एजेस, जैसे मैंने आपको शो किया था, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी टूथ एजेस होती हैं और कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मूथ एज होती है। टेक्सचर बताया है कि कुछ लीव्स हमारे पास होते हैं जिनका टेक्सचर स्मूथ होता है, रफ होता है, हेयरी होता है। इस तरह से आप लीव्स को इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस द workbook activity। So you have completed this work in your book। You will complete this work on the page number 96। Question number 5, what is collected in the conical flask after filtering? So filtering में हमने सबसे पहले क्या कलेक्ट किया था? वाटर कलेक्ट किया था। वाटर इज कलेक्टेड इन द कॉनिकल फ्लास्क। व्हाट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्टरिंग? क्या फिल्टर पेपर पे रह गया था जब हमने फिल्ट्रेट का प्रोसेस किया था? सैंड एंड बीन्स रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। सो यू हैव टू राइट दीज टू क्वेश्चंस। Another question we have, question number 10, compare the size of the bean। The whole size of the sieve is smaller। sieve का size जैसे मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा smaller था। Then the size of the beans का size के मुकाबले में बहुत ज़्यादा smaller था and bigger than the sand grains। So the sand grains will pass and the beans will not pass through it। You have to accomplish this work in your workbook। Another chapter, that is the chapter number 6, you will complete this work। Activity 6.1, observe the plant in a garden or park, identify the parts, leaf, stem, root, flowers and fruits of different plant, use a magnifying glass to help you। आपने सबसे पहले क्या करना है? ड्रॉ द टू प्लांट्स। आपने यहाँ पे प्लांट्स को ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक स्पेस दी गई है, लेबल द डिफरेंट पार्ट। प्लांट ए में आपने क्या करना है? प्लांट को ड्रॉ करना है, ये आपकी बुक में भी डायग्राम दी गई है, और इसके स्पेसिफिक पार्ट्स जो हैं जिस तरह से मैंने बताए थे आपको, आई टोल्ड यू अर्लियर, लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट, फ्रूट, ये सब आपने लेबल करके बताना है प्लांट्स के पार्ट्स को। प्लांट एक की डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने। नेक्स्ट वर्क, write down the two similarities and two difference between a taproot system and fibrous root system। क्या similarities हैं, क्या similarities यानी कि क्या एक जैसे शेयर स्ट्रक्चर्स हैं और different structures क्या हैं टैप रूट में और fibrous root में। both root system help the plant to absorb water। roots का workout क्या है कि वो absorb water करती हैं from the soil। ये similarities हैं, टैप रूट में भी यही workout होता है और fibrous root में भी यही होता है। both root system help the plant to hold the ग्राउंड में प्लांट को होल्ड करके रखती है, डज नॉट फॉल ओवर इट। डिफरेंसेस क्या है? टैप रूट सिस्टम हैज अ मेन रूट विथ मैनी
मैनी ब्रांचेस रूट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कैरोट में टैप रूट होती है, उसकी थिनर ब्रांचेस निकली हुई होती है, वाइल फाइब्रस रूट सिस्टम हैज मैनी रूट्स ऑफ अबाउट द सेम साइज। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होती हैं, उसमें बहुत सारी रूट्स एक साथ हमें दिख रही होती हैं और सेम साइज में होती हैं। टैप रूट्स आर एडिबल बिकॉज इट स्टोर द फूड। एडिबल वो रूट्स होती हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं, वाइल फाइब्रस रूट्स आर नॉट एडिबल। फाइब्रस रूट एडिबल नहीं होती, ये अपने फूड स्टोर करके नहीं रखती। सो द डायग्राम बिलो शो आर टोमेटो प्लांट, ये टोमेटो प्लांट के डायग्राम है। डज द टोमेटो प्लांट हैव अ टैप रूट और फाइब्रस सिस्टम? आप ऑब्जर्व करें और बताएं कि प्लांट टोमेटो प्लांट के पास कौन सी रूट है, टैप रूट सिस्टम है या फाइब्रस रूट सिस्टम है। तो प्लांट के पास आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पर क्या है, टैप रूट सिस्टम है। आइडेंटिफाई द पार्ट, द लेबल पार्ट इज रूट कैप। ये जो आइडेंटिफाई पार्ट है, लेबल पार्ट है, रूट कैप है। इट कवर एंड प्रोटेक्ट द टिप ऑफ अ रूट। रूट हेयर्स आर फाउंड ऑन द रूट, दी हेल्प द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं, एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से मिनरल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स, आपके पास ये वर्क आपके कंटेंट में भी है, ठीक है, आपने वहां से भी राइट कर लेना है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है, आपने प्लांट A B C D E में इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लीव्स हैं, लुक एट द शेप ऑफ ईच लीव, डिस्क्राइब दियर शेप। जैसे हिबिस्कस लीव की थी, उसकी शेप कैसे थी, ओवल शेप थी। ऑर्चिड लीव की जो थी शेप थी लॉन्ग एंड नैरो शेप थी, ठीक है। लुक एट द एजेस ऑफ द लीव, हिबिस्कस लीव की एज जो है टूथ एज है, ऑर्चिड लीव की एज जो है स्मूथ एज है, ठीक है। ऑब्जर्व द वेन्स ऑफ बोथ लीव, अगर आप वेन्स देखें, हिबिस्कस लीव तो हमने देखा था नेट लाइक वेन्स होती हैं, ऑर्चिड लीव की जो थी पैरेलल वेन्स। सिमिलैरिटीज, हिबिस्कस लीव, ऑर्चिड लीव, बोथ लीव आर ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। ये देखो दोनों देखी थी हमने, ग्रीन कलर में थी। बोथ लीव मेक फूड फॉर द प्लांट। हिबिस्कस लीव, ऑर्चिड लीव, इट हैज अ ओवल शेप, इट हैज लॉन्ग एंड, ये मैंने आपको बोर्ड पे भी डिस्कस कर दिया था कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ड्रॉ और पेस्ट द लीव, आपने ड्रॉ कर लेना है या फिर पेस्ट करना है लीव्स को। लार्ज बनाना लीव है, ये आपने ड्रॉ करना है अपनी बुक से, और लार्ज पाम लीव है, ये आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। फिर लीव सी में आपने मीडियम मैंगो लीव है, यहाँ पे आपने ये ड्रॉ करनी है, और मीडियम बैम्बू लीव है आपके पास, ये आपने ड्रॉ करनी है। आपके पास बुक में भी दी गई है, कंटेंट में भी है, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर प्रॉपरली, यू विल अकम्प्लिश द ऑल वर्क इन योर एक्टिविटी बुक। सो टेक केयर अ लॉट, अल्लाह हाफिज।